ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लेक्स प्रेप। यूथ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या लीगैलिटी है लिव इन रिलेशनशिप की? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना किसी तरह का ऑफेंस है? अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है? इस तरह के इश्यूज, इस तरह के मुद्दे आज के यूथ के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं। और अभी साथ में ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को अमेंड किया गया। 1971 में ये एक्ट पास हुआ था, जो कि अबॉर्शन को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाता था। कुछ कंडीशंस थी जहाँ पे अबॉर्शन अलाउड था, अदरवाइज लार्जली ये सारा अबॉर्शन इलीगल माना जाता था। और यहाँ पे महिला को, वुमेन को, द चाइल्ड बेयरिंग मदर could be punished. Now, this particular act has been amended in 2021, 50 years down the line. The act, the new act per se, is a liberalized version of the previous act passed in 1971. There are different time frames of pregnancy under which abortion is allowed. But recently, the Supreme Court has heralded this particular legislation, gave a very liberal interpretation to what constitutes a married woman and what constitutes, what are the possibilities, or you can say advantages, that the new act will be catering to the unmarried couple. Now, definitely, live in relationships are considered to be legal in India. They are not considered to be an illegal offense, or you can say an act. So, what are the parameters for this particular abortion and termination of pregnancy that the law calls? We are going to look into this. We're also going to look into the landmark Supreme Court rulings that have accorded sanctity, or you can say protection, to the live in relationships. Now, the point is that the bodily integrity of a woman, the right to have a baby or not to have a baby, the right to reproduce, is considered sacrosanct for a woman under Article 21. That cannot be taken away, that cannot be abridged even by parliamentary legislations. There are different time frames that you should keep in mind, right? So, this is the infographic from Hindustan Times, which tells us that the time period is largely like this. So the time period says that at once there would be 0 to 12 weeks time, 12 to 20 weeks time, then it is 20 to 24 weeks, and beyond 24 weeks. So this particular act has scientific reasons. Beyond 24, so if you divide 24 by 6, if you divide 24 weeks by 4, why would you divide it by 6? 24 weeks by 4, because there are 4 weeks in a month, you will find that it is 6 months, which means that the law says that it gets really difficult if you want to abort a child after 6 months. But between 0 to 12 weeks, you don't need any permission per se, right? Between 12 to 20 weeks, you need the advice of one registered medical practitioner. Between 20 to 24 weeks, that is from 5 to 6 months of pregnancy, you need the advice of two medical practitioners. They must be registered and government doctors. Beyond 24 weeks, the advice should be taken by a medical board. And the medical board will be constituted by the order of the High Court or the state government per se. Now, obviously, there are scientific reasons, because the pregnancy, the bulge in the mother's womb, usually is reflected, is visible after 3 months. So that is like 12 weeks, right? So after 3 months, the the fetus is evolving, and the right of the fetus to survive, to have an existence, starts taking importance, and the right of the woman to abort the child, which is conceived and which is going to be born, starts gets to diminish. But there are certain conditions. Now, this is a liberalized version. In 1971, this was not the case. Beyond 20 weeks, the women were not allowed. Beyond 5 months of pregnancy, the women were not allowed to abort. Now, considering the incidence of rape, the surviving victim has to bear the child that she did not want, and all of this. So,
the regulation or the law is, you can say, lightly liberalized right now because it allows the woman to terminate pregnancy even beyond 24 weeks, and for that matter 20 weeks. So beyond 20 weeks, if she's a rape survivor, then definitely she can terminate. But beyond 24 weeks, the medical board has to establish that there would be no threat to the life of the mother if the fetus is aborted. Now, what is the present matter that came before the High Court, Supreme Court right now? So please notice that the Supreme Court had passed an ad interim order, which means that this order was not final, where they had allowed an unmarried woman to abort her pregnancy of 24 weeks. Now, the main point is that this was not a marriage but a live in relationship. Please note the way live in relationship is written. Most of the students I have seen writing living relationships. What do you understand by living relationship? There is no relationship as a living relationship. It's a live in, साथ में रहना, live in relationship, right? The permission has to be accorded subject to the opinion of the medical board. The medical board, which was constituted, which comprised of doctors from AIMS Delhi, they had concluded that the fetus can be aborted without the risk of life to the woman, and that is why the abortion was allowed by the order of the Supreme Court. But Supreme Court did not intervene in this particular matter just like that. The petitioners were basically appealing against the order of, you can say, the High Court. The High Court of Delhi had given a very restrictive interpretation, had given a very restrictive interpretation with respect to Medical Termination of Pregnancy Act, and they had stated that the court cannot go beyond, uh, the legislation per se. Now, the point is that the new act has used the word partner. The new act has used the word partner instead of you can say husband. Now, this is very important to note how interpretation is largely done by the court. So they've uses the word partner instead of husband. By using this particular statement, the court stated that the idea or the intent of the legislature, the lawmaking body, is to also include unmarried women. Now, that is what the court is saying, that the intention of the parliament is not to confine the benefits of such situations with respect to abortion rights arising out of matrimonial relationships only. What do you mean by matrimonial relationships? It simply means marriages. यानी कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट की ये बिल्कुल भी मंशा नहीं थी कि अबॉर्ट करने का अधिकार सिर्फ ऐसी महिलाओं को मिले जिनकी शादी हो चुकी है। जो महिलाएं बिना शादी के एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, क्या उनके पास किसी तरीके से अबॉर्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो पार्लियामेंट का इंटेंशन ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनके पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के अंदर लिव इन रिलेशनशिप की महिलाओं के पास भी इक्वल अधिकार है, जिसमें एक अगर विडो और एक डिवोर्सी को अगर अधिकार मिलता है कि अपनी 20 से 24 महीने हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करा सकती है, तो एक अनमैरिड वुमेन को ये चीज़ क्यों नहीं मिलती? यानी शादी जिसकी टूट चुकी है या जिसका पति नहीं रहा है, वो उन कंडीशंस में अपनी टर्मिनेशन करा सकती है, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करा सकती है, तो एक अनमैरिड वुमेन क्यों नहीं करा सकती? यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 ऑफ वुमेन जो है वो वॉयलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। महिला जिसके पास एक बेबी है जो वो नहीं रखना चाहती, शी डजंट वांट टू कीप, राइट? तो ऐसे केस में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर दे रहे हो डिवोर्सी, विडो और अनमैरिड वुमेन में, राइट? So point is that the Supreme Court has overruled the order of the Delhi High Court and stated that change in the marital status that allows for the termination of pregnancy, किसी भी शादी के व्यवस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन जो है, कोर्ट ने कहा इस चीज़ को आपको थोड़ा सा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से इसके मतलब को डिराइव करिए मैरिटल स्टेटस को कि इसका एक उद्देश्य क्लियर हो। फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप में हम रह रहे थे, कंसेंट के साथ रह रहे थे, एडल्ट थे, बाद में अपनी जमना बंद हो गई तो अपन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब ऐसे केस में ये मैरिटल स्टेटस में ही तो चेंज हो गया। अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी है कि लिव इन रिलेशनशिप्स को शादी की तरह ट्रीट किया जाता है। देर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स विच इंडिकेट दैट लिव इन रिलेशनशिप में जो वुमेन का अधिकार है वो सेम होता है जो कि एक मैरिड वाइफ का होता है या मैरिड वुमेन का होता है। तो जब लिव इन रिलेशनशिप ऑलरेडी लीगल है इंडिया में,
उसको लीगैलिटी दी गई है, उसको एक मैरिटल यूनियन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो उससे अराइज होने वाली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के केसेस को क्यों डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? उसी जजमेंट्स को, उन्हीं लॉजिक को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मिट्टी डाली बात पे और बोला कि चेंज इन द मैरिटल स्टेटस को ऐसा समझ लीजिए कि चेंज इन द सिचुएशंस टू कोहैबिट टुगेदर हैव चेंज्ड, एंड दैट इज द पर्पस दैट यू विल अलाउ द वुमन टू टर्मिनेट, राइट? What Delhi High Court has previously held, so this was a division bench. Now, please note the moment the word division bench comes into your before you, remember that it is either two or three judges, right? The Chief Justice Satish Chandra, who is now appointed as a Supreme Court judge, and Justice Subramaniam Prasad, 16th July 2022, they refused to grant the permission for abortion, and they had observed that the Rule 3B of Medical Termination of Pregnancy Rules 2003 stands, and this court, while exercising its power under Article 226 of the Constitution of India, cannot go beyond the statute. Granting interim relief would amount to allowing the writ petition itself. Now, the High Court had stated the petitioners had went to before the Delhi High Court under Article 226, which you know is the writ jurisdiction of the High Court, and they had stated that while you accept my petition, and put reasons for not accepting it or rejecting it, at least pass an interim relief, interim order, अंतरिम आदेश दे दीजिए जिसमें आप टर्मिनेशन की परमिशन दे दें। बाद में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का और रूल्स का क्या इंटरप्रिटेशन है वो करते रहिएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर उन्होंने अंतरिम आदेश भी दे दिया बिना पिटीशन को स्वीकार किए, तो एक तरीके से वो हो जाएगा कि आर्टिकल 226 का लाभ आपको मिल चुका है, तो ऐसा कोर्ट ने करने से मना कर दिया। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था हाई कोर्ट के सामने कि जो रूल 3B है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स का, देखिए किसी भी एक्ट के अंदर मिनिस्ट्रीज को पावर दी जाती है कि वो समय समय पे कानून बना सकते हैं जिनको रूल्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक्ट पार्लियामेंट बनाता है, रूल्स मिनिस्ट्रीज बनाती हैं। एक रूल जो है वो किसी एक्ट के अंडर किसी मिनिस्ट्री ने ही बनाया होगा। तो उसी तरीके से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर 2003 में रूल्स बनाए गए थे जो ये बताते थे कि अगर अबॉर्शन कराना है तो किस तरीके से कराना चाहिए। तो पिटिशनर ने कहा कि जो रूल 3B है जो सिर्फ मैरिड वुमेन को अलाउ करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, दैट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that you are creating an unwarranted discrimination between a married woman and an unmarried woman, but the facts of the matter are same, that they don't want to have the baby. On this the court had stated that ये रूल वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इंटरप्रिटेशन है, ये अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, इसके लिए आपको इसमें क्या है रिट पिटीशन के अंडर आना पड़ेगा और रिट पिटीशन की नोटिस जो है जारी कर देंगे। लेकिन तब तक क्या होता है, ये जो लोग हैं जो पिटिशनर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अपनी दलील में ये कहते हैं कि ये जो लड़की है इसके 5 भाई बहन हैं, ये किसान की बेटी है, और इस लड़की अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो इस लड़की के पास इतना पैसा नहीं है कि ये बच्चे को अच्छी ग्रोथ दे पाए, उसको मेंटेन कर पाए, और ये किसी भी तरीके से बच्चे को नहीं चाहती है, तो बच्चे की पैदा हो जाने के बाद की ज़िंदगी जो है वो दिक्कत भरी हो सकती है ऐसे केस में। और यहाँ पे तो सबसे पहले कोर्ट ने ये देखा कि ये लिव इन रिलेशनशिप थी, ये लोग कंसेंशुअल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और एडल्ट थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एम्स का आप एक मेडिकल बोर्ड बनाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी तब तक 24 हफ्ते 24 वीक्स के बियॉन्ड जा चुकी थी। अब मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के बिना तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था, तो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और मेडिकल बोर्ड ने अगर ये कह दिया कि कोई खतरा नहीं है महिला की जान को, तो अबॉर्शन को करा दिया जाएगा। The report also furnished to the court completion of procedure. The court has issued also the guidelines to the union government, जहाँ पे उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, कोर्ट ने कहा कि भाई जो सरकारी वकील जो है केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला, प्लीज़ आए मेरे सामने और ये वुमेन वाला जो इंटरप्रिटेशन है कि क्या इसमें अनमैरिड वुमेन है क्या है, उसमें हमारी मदद करे। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था अपने आदेश में प्रीवियसली 2022 में, उन्होंने कहा था कि देखिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को अलाउ करती है, प्रेगनेंसी 20 हफ्ते के बाद हो तो टर्मिनेट नहीं कर सकते। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में कहा गया है कि अगर आपको 20 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है, राइट, तो आपको क्या चाहिए,
कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही करा सकते हैं, राइट। और उसको 2021 में अमेंड कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या है फिर वो कंडीशंस, किस तरह से डिसाइड होता है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, 2021 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें बोथ मैरिड और अनमैरिड वुमेन दोनों ही कवर्ड होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जो टाइम पीरियड है एबॉर्शन का उसको जेस्टेशनल एज लिमिट कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जेस्टेशनल एज लिमिट कहा जाता है। अगर वो 20 वीक्स टू 24 वीक्स है तो सिर्फ रेप सर्वाइवर्स को अलाउड है। अगर बियॉन्ड 24 वीक्स है तो सब्सटैंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज शो करना पड़ेगा, तब जाके आपको एबॉर्शन अलाउ किया जाएगा। अब बात करें आपकी, तो 0 to 12 वीक्स तक आपको कोई नहीं चाहिए। 12 से 20 हफ्ते तक आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए, दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए अगर 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है, और एक मेडिकल बोर्ड चाहिए अगर बियॉन्ड 24 वीक्स है। अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो नए लॉ के अंडर आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। पहले सिर्फ फाइन लगाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही, लेकिन यहाँ पे ये बात मानी कि कुछ गैप है लॉ में, क्योंकि एक्ट और रूल्स दोनों एक जैसी बात नहीं करते हैं। जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को बदल दिया गया है, पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रूल्स को नई एक्ट के हिसाब से नहीं बदला गया है। सेक्शन 3 जो है एक्ट का, वो कन्वेंशनल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन मैरिजेस के बियॉन्ड जाता है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप्स हो, डिवोर्सी हो, विडो हो, सबको एक्सटेंड होता है। लेकिन रूल 3 भी जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल्स का है, वो इस तरह की सिचुएशन को कॉन्टेम्पलेट नहीं करता है कि अनमैरिड वुमेन जो है क्या वो टर्मिनेट करा सकती है। तो गैप तो है लॉ में, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को आने के लिए बोला है। और साथ में तो फिर अनमैरिड वुमेन में क्या क्या आ सकता है, देखिए ज़रूरी अनमैरिड वुमेन का मतलब ये होता है कि शादी नहीं हुई। अब कानून उसको कहता है कि डिवोर्सी भी अनमैरिड वुमेन है, एक विडो भी अनमैरिड वुमेन है, एक माइनर को भी अनमैरिड वुमेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। जहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो की बात करें, भले ही उसकी विधि पूर्वक शादी हो चुकी है, लेकिन विधि विधान के तरीके से शादी हो चुकी है लेकिन माइनर है, तो शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। डिसेबल्ड और मेंटली इल वुमेन या सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप को अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन में ट्रीट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। एक आर्टिकल 14 तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन आर्टिकल 21 में याद रखिएगा, बॉडीली ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव चॉइस प्रोटेक्टेड है। और आप कभी भी रिप्रोडक्टिव चॉइस को आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन से मत करिएगा। याद रखिएगा वो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है और राइट टू लिबर्टी से रिलेटेड है, जो ही दोनों आर्टिकल्स हमारे 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो शी हैज़ अ सैक्रोसैंक्ट राइट to bodily integrity. That is what the Supreme Court has stated. Now, coming to this very interesting aspect, what is the legality of a live-in relationship? तो महिलाएं हमारे देश की 18 से 24 साल की उम्र की महिलाएं पर्टिकुलरली, जो कि अपने युवा जीवन में कॉलेज के टाइम पे अपने पार्टनर्स चूज करके लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, याद रखिएगा आपके पास प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी। अगर आपका पार्टनर आपको मार पिटाई करता है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बहुत फिजिकल अब्यूज़ करता है, तो आपके पास सेम प्रोटेक्शन अवेलेबल है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, जो कि एक मैरिड वुमेन को मिलता है। 23 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट एस खुशबू वर्सेस कन्हैया माल में कहा था कि कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कपल लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज आर कमिटिंग नो ऑफेंस। पहले दुनिया भर के तमाम तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और असॉल्ट और तमाम तरह के लड़की के घर वाले आरोप लगा देते हैं लड़के पे, क्योंकि लड़कियां यूजुअली अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में जब रह रही होती हैं तो फैमिलीज़ को आपत्ति होती है। फैमिलीज़ को अगर पता चल जाता है तो वो लड़के को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ फॉल्स केस रजिस्टर कराते हैं। फॉल्स केस में कभी कभी असॉल्ट का, कभी कभी सेक्सुअल असॉल्ट का, कभी कभी रेप का एलिगेशन भी लखवा देते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एडल्ट लोग हैं और कंसेंस की अपनी मर्जी के साथ रह रहे हैं तो किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। और 2006 से लिव इन रिलेशनशिप को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चालू किया। ज़रा लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, ज़रा उनसे खुल के बात करिएगा, ज़रा उनकी राय को देखिएगा। अपनी राय बताइएगा मत, पर उनकी मंशा, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करिएगा। या आपके समाज में जो भी बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, आप उनसे ज़रा लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पूछिएगा। अरेंज मैरिज से लव मैरिज का ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने की डिबेट आने लगी है, तो आप ज़रा पूछेगा कि आपको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी में जो रीजंस हैं या जो एस्पर्जन्स हैं, जो दूरियां हैं सोच में, वो क्यों हैं और वो क्या हैं।
और यहाँ पे 2006 से सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को एक ओपिनियन अपना देना लगा, और 2010 में जजमेंट जब आया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि किसी तरह का अपराध नहीं है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भी एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स कॉन्ट्ररी सेक्स के हैं, अपोजिट सेक्स के हैं, लिविंग टुगेदर में रह रहे हैं एक घर के अंदर बिना शादी के, तो किसी तरह का कोई अपराध नहीं कर रहे। फिर महिलाएं जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं उनके लिए एक और स्पेशल प्रोटेक्शन है हमारे लॉ में। चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह खुशवाहा के जजमेंट में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वुमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर। फिर रेवाना सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो मासूम कंसीडर किया जाएगा और उसके पास वो सभी राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जो कि एक वैलिड मैरिज के बच्चे के पास होते हैं। अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इंटरेस्टिंगली एक बात बोली है। एक्चुअली हुआ क्या था, मामला ये था कि एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी, उसका 2 साल का बच्चा था, वो पति से अनबन था, 2 साल से पति के साथ रह भी नहीं रही थी और डिवोर्स मांगना चाहती थी। फिर उसी लड़की को किसी लड़के से प्यार होता है और वो लड़की उसके साथ रहने लग जाती है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी ये कहा कि अगर एक एडल्ट कपल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, जिसमें से एक का अगर स्पाउस है, एक का स्पाउस है, लिविंग है, और अभी तलाक नहीं हुआ है, और फिर भी वो लिव इन में रह रहा है, तो उसको ऑफेंस ऑफ बाईगैमी के अंडर कंसीडर किया जाएगा। बाईगैमी का ऑफेंस क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा शादी करो। तो बाईगामस मैरिज हमारे यहाँ पे कर नहीं सकते। बाईगामस मैरिज मतलब एक से ज़्यादा शादी करना ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप का आप देख सकते हैं क्या स्टेटस है कि अगर आप मान लीजिए तलाक दिए बिना किसी अन्य महिला के साथ या पुरुष के साथ रहने लगते हैं अपनी मर्जी से, तो आपको माना उस रिश्ते को भी माना जाएगा कि आप शादी कर रहे हैं या शादी कर चुके हैं, तो वो बाइगैमस है, वो अपराध है। धन्नूलाल वर्सेस गणेश राम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्चुअली प्रिजम्पशन मिला है लीगली मैरिड का। ये प्रिजम्पशन किस बेसिस पे है, क्या टाइम पीरियड है, तो कहते हैं कि बहुत लंबा समय, कई हफ्ते कई महीने का समय है अगर आप साथ रह रहे हैं, तो आपको मैरिटल राइट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक लीगल यूनियन की तरह आपको ज़रूर ट्रीट किया जाएगा, जहाँ पे महिला को सुरक्षित करने के लिए सारा कानून एक्टिव हो जाता है। सीआरपीसी से लेके आईपीसी से लेके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो भी कानून बनाया गया है एक मैरिड वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी वो अकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप कई लंबे समय से रह रहे हैं और अगर लड़के की मौत हो जाती है, तो महिला के पास राइट टू इनहेरिटेंस भी है, यानी उस आदमी की कोई भी संपत्ति जो है वो महिला का उस पर पहले अधिकार होगा, और उससे पैदा होने वाले बच्चों को भी लेजिटिमेट चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट और जो वेरियस हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को इतना वाइड स्कोप, इतना वाइड एम्बिट दे रखा है, और यहाँ पे हमारे सामने एक पब्लिक ओपिनियन आता है जहाँ पे आज भी लिव इन रिलेशनशिप्स के नाम से लोग पब्लिकली बात करना एक्सेप्ट करने में कतराते हैं। सो क्या आपको ये लगता है कि हमारे समाज में जो चाल चलन है या जो सोच है, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जब ये बात हो रही है, एजुकेटेड लोगों में, लिबरल क्लास में जब ये बात हो रही है, तो दोनों में एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। कैसे इस गैप को भरा जा सकता है, क्या इस गैप को भरना ज़रूरी है, क्या लिव इन रिलेशनशिप्स को हमें विस्तृत रूप से चर्चा में लाना चाहिए, क्या लिव इन रिलेशनशिप को हमें फाइनली इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने से द इंस्टीट्यूशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या फेल हो रहा है, क्या है आपका ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ूंगा। आई थिंक इस वीडियो को जहाँ लास्ट तक देखा है वो आपके कमेंट को पढ़ेगा, वो आपके ओपिनियन से प्रभावित हो सकता है, वो आपके ओपिनियन को रेफ्यूट कर सकता है, उससे ये अग्री हो सकता है, डिसअग्री हो सकता है। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर अबाउट what you're putting in the comments here. And I want that the students, those who are aspiring to become future advocates, social engineers of the future, please do put your opinions in the comment section of this particular video. अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से अभी तक देखा है, इसका मतलब आपको कंटेंट रेलेवेंट और समझ में आया है। अगर आपको कंटेंट रेलेवेंट लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो why haven't you subscribed to the channel so far now?
चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं मैं आपसे। आज है 1 जनवरी 2024। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग ईयर हेड। I hope it brings joy, happiness, and prosperity in your life and you reach wherever you want to reach. I'll see you guys in the next.